Hello dear children, I am Chaya ma'am from Kendriya Vidyalaya Railway Gandhidham. Today we are going to learn to read and understand the train ticket. I request you all the children watch the video up to the end because I have covered many important topics of the chapter 8 reaching grandmother's house in this video. This would be really very helpful to you. So let's start. As you can see, this is the train ticket. You might have seen the train ticket at your home similar to this or a different one. We would also discuss about the other type of ticket also. Here, to understand the ticket or to find out the necessary information from the ticket is very important. The first and the most important information for every passenger who is traveling from the train is PNR number. Now, what is the use of this PNR number, or we can ask what is PNR number? So here PNR number stands for passenger name record number. P for passenger, N for name, R for record number. For every ticket, a unique PNR number is generated. Through this PNR number, railways keep the record of every passenger's journey details. You can also check the status of the train, your seat number, the coach number, etc. through this PNR number. Now, the another information is train number. This is the train number. The train number of this train is 9037. Next is date. Date of the journey is written here. So the date of the journey is 24 December 2006. You can find out the date of journey from here. नेक्स्ट इज किलोमीटर. कितने किलोमीटर आपको होगा, कितना किलोमीटर दूर जाना है. टू फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू चेक हियर द डिस्टेंस बिटवीन बांद्रा टर्मिनस टू रतलाम जंक्शन इज 643 kilometer. The distance between Bandra terminus and Ratlam junction is 643 kilometer. Distance here is given in kilometer. Next, this. How many passengers are traveling in this ticket? We can find out through here. Adults, there are 2 adults and 1 child. That means 3 passengers altogether are traveling through this ticket. Next is, now this is 2 Vata. 2 Vata means what? 2A. That means 2 tier AC, the class in which this passengers or this passenger we can say they are traveling through 2A means 2 tier AC. 2 tier AC is indicated the class. ट्रेन में जैसे हम जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास होते हैं, जैसे कि स्लीपर क्लास होता है, देन 3 टियर AC, देन चेयर कार होती है, जनरल कोचेस होते हैं. दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास. तो ये जो टिकट है वो है 2 टियर AC की. अगर आपने ट्रेन देखी है, आप ट्रेन में बार बार ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि ट्रेन में कैसे कैसे अलग अलग क्लासेस डिफरेंट होते हैं. लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा है तो लेट मी शो यू. हियर 2 टियर AC. 2 टियर AC ऐसा होता है जिस द कोच इज फुल्ली एयर कंडीशनड. पूरा एयर कंडीशन होता है. विंडोज आर क्लोज्ड हियर. विंडोज जो होती है वो बिल्कुल बंद होती है बिकॉज ऑफ AC. 2 टियर AC में सिर्फ 2 पैसेंजर के लिए सीट होती है वन साइड.
जैसे कि यहाँ पर ये जो है इंसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिस इज हीज सीट एंड द अदर पैसेंजर, फॉर द अदर पैसेंजर इज हियर, दैट मीन्स टू ओनली। यहाँ पर ये जो भाई साहब बैठे हैं उनके लिए ये सीट है और ऊपर एक दूसरी सीट भी होगी। तो 4 पैसेंजर कैन ट्रैवल one side 2 and the other side 2, 2 tier AC, we are talking about 2 tier AC. If we talk about 3 tier AC, तो सेम वे जैसे 2 टीयर फुल्ली कोच एयर कंडीशन होता है, सेम वे इन द 3 टीयर द कोच इज एयर कंडीशन। लेकिन यहाँ पर जो बीच में मिडल बर्थ, देखिए ये जो नीचे है इसे कहते हैं लोअर बर्थ, दिस इज मिडल बर्थ एंड दिस इज अपर बर्थ। 2 टीयर एसी में ये जो मिडल बर्थ है ये नहीं होता। अभी आप इसको याद रखना, दिस इज लोअर बर्थ, दिस इज मिडल बर्थ एंड दिस इज अपर बर्थ, क्योंकि ये आगे पढ़ने में आएगा। तो हम 2 टीयर एसी की बात कर रहे हैं, तो 2 टीयर एसी में ये मिडल बर्थ नहीं होता है, सिर्फ लोअर बर्थ होता है और अपर बर्थ होता है। दिस इज 3 टीयर एसी, तो इसमें क्या होता है, बीच में मिडल बर्थ भी होता है। सेम वे विंडोज आर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ एसी। अब ये थर्ड क्लास जो है, दिस इज स्लीपर क्लास। इन दिस स्लीपर क्लास विंडोज आर ओपन्ड, यू कैन ओपन द विंडो एंड क्लोज द विंडो, उसमें से हवा आती है। फैंस आर ऑल्सो फिटेड। फिर क्या होता है, फैंस होते हैं, विंडोज भी आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ये जो 6 सीट्स आपको दिखाई दे रही है, 3 हियर एंड 3 हियर, उसके सामने की साइड पे ये 2 सीट होती है। दिस इज कॉल्ड साइड लोअर एंड दिस इज कॉल्ड साइड अपर। साइड लोअर एंड साइड अपर, ये जो मिडल वाली साइड मिडल जो बर्थ है, किसी किसी ट्रेन में होती है, किसी किसी ट्रेन में नहीं होती है, पर साइड अपर एंड साइड लोअर ये तो होती ही है। विंडोज आर ओपन, इसे कहते हैं स्लीपर क्लास। कौन से क्लास कहते हैं, स्लीपर क्लास। तो अभी तक हमने 3 क्लास सीख लिया, 2 टीयर एसी, 3 टीयर एसी एंड स्लीपर क्लास। एक टाइप की जो क्लास होता है उसे कहते हैं चेयर कार कोच। चेयर कार कोच मतलब क्या, जिसमें शॉर्ट ट्रैवलिंग है, जिसमें नाइट जर्नी नहीं होती है। गवर्नमेंट ने ऐसी ट्रेन्स डिज़ाइन की है जिसमें बैठने के लिए सीट्स होती है, मीन्स आप सिर्फ बैठ सकते हैं, आप ये सीट्स की तरह आप लेट नहीं सकते इसमें। यहाँ पर तो आप लेट कर सो सकते हैं, यहाँ पे नहीं लेट सकते, दीज आर सीट्स ओनली। तो आप यहाँ पे बैठे हैं। अब जैसे आपको मुंबई से अहमदाबाद आना है या अहमदाबाद से आपको मुंबई ट्रैवल करना है, आप मॉर्निंग में 6 ओ क्लॉक बैठेंगे ट्रेन में, तो दोपहर में आप 11 साढ़े 11 बजे मुंबई पहुंच जाएंगे। इतने ही घंटे लगते हैं फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई। तो इसके लिए बहुत सारी चेयर कार्स चलती हैं ट्रेन में, जिसमें आप बैठे बैठे ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं चेयर कार। तो 4 क्लासेस आपने देख लिए, 2 टीयर एसी, 3 टीयर एसी, स्लीपर क्लास एंड चेयर कार। इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज लोअर बर्थ, मिडल बर्थ एंड अपर बर्थ। चलिए नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट इज, ये हमने देख लिया, यहाँ पर श्रेणी मीन्स क्लास, क्लास हमने देख लिया। दिस टिकट इज बुक्ड फॉर 2 टीयर एसी, सेकेंड क्लास एसी के लिए ये टिकट बुक्ड है। अब आगे देखते हैं कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है। सो द पैसेंजर्स विल ट्रैवल फ्रॉम बांद्रा टर्मिनस टू रतलाम जंक्शन। कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेंगे, ये बांद्रा टर्मिनस से ट्रैवल करेंगे टू रतलाम जंक्शन, वहां तक जाएंगे। द जर्नी from Bandra terminus to Ratlam junction. Next is here coach. आपका कोच नंबर क्या है। तो जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, कोच नंबर, टू फाइंड आउट द कोच नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ट्रेन में बैठना है, आपको कोच नंबर पता नहीं है, आप कैसे बैठोगे। ट्रेन में तो बहुत सारे डिब्बे होते हैं, जो डिब्बे होते हैं उन्हें कोच कहा जाता है, पर कौन से कोच में आपको चढ़ना है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो वो आपको पता चलेगा यहाँ से, कोच दैट इज A1 कोच आपका है। इसमें एक कॉमन होता है, जैसे अगर आपको 2 टीयर एसी में ट्रैवल करना है तो कोच नंबर होगा A1 A2। अगर आप 3 टीयर एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोच होगा B1 B2 B3, ऐसे कोच होंगे। अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका कोच नंबर आएगा S1 S2 S3 S4, इस तरह से कोच नंबर अलॉट होते हैं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू चेयर कार, तो चेयर कार में आता है कोच D1 D2 D3 D4। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है गवर्नमेंट की कि ए कोच है मीन्स आपका A1 A2 कोच होगा तो मीन्स 2 टीयर एसी होगा। B1 की सीरीज होगी तो वो 3 टीयर एसी होगा।
देन स्लीपर क्लास की सीरीज होगी तो S1 S2 होगा। एंड अगर आपका ये है चेयर कार तो उसमें D1 करके सीरीज चलती है, D1 D2 D3। कुछ डिफरेंट भी इससे अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही है, बट कॉमन प्रैक्टिस यही चलती है। मोस्ट ऑफ इसी टाइप के कोच अलॉट होते हैं। आगे देखते हैं। नाउ द सीट्स, कौन से पैसेंजर को कौन सी सीट अलॉट की गई है। तो देखो यहाँ पर 3 सीट्स दिखाई है। 3 पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग हियर, जैसे हमने देखा 2 एडल्ट्स आर देयर एंड 1 चिल्ड्रन, सॉरी 1 चाइल्ड, 1 चाइल्ड इज देयर एंड 2 एडल्ट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं द फर्स्ट सीट इज 21 लोअर बर्थ, LB फॉर लोअर बर्थ, 23 इज द सीट नंबर एंड SL मीन्स साइड लोअर। मैंने पहले आपको कहा था कि जब हम कोचेस के फोटोज देख रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि लोअर बर्थ, मिडल बर्थ एंड अपर बर्थ, टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बताया था। यहाँ टिकट में लिखा हुआ होता है LB मतलब लोअर बर्थ हो गया, SL मीन साइड लोअर, जो सामने वाली 2 सीट्स रहती है दैट इज साइड लोअर एंड साइड अपर। तो ये 23 नंबर की सीट है एंड 22 नंबर दैट इज अपर बर्थ, ऊपर वाली है। इसमें मिडल बर्थ 2 टियर AC है तो इसमें मिडल बर्थ नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ दिस इज द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर। तो मेल M फॉर मेल एंड F फॉर फीमेल। तो एक मेल है जिनकी एज है 39, एक फीमेल है जिसकी एज है 37 और अगेन एक मेल है जिसकी एज है 7। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो फैमिली है, ये फैमिली में हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे इस वीडियो के कमेंट में दैट हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। इस फैमिली में एक मेल है जिनकी एज है 39 ईयर्स, एक फीमेल है जिनकी एज है 37 ईयर्स और एक मेल है जिसकी एज है 7 ईयर्स। अभी देखो यहाँ पर तो पैसेंजर डिटेल्स में उनका नाम नहीं लिखा है, बट टिकट चेकर जब आते हैं तो आपको पता होगा कि टिकट चेकर एक चार्ट लेके आते हैं अपने पास, 1-2 पेपर्स लेके आते हैं जिसमें से वो चेक करते हैं आपकी टिकट्स। आप जब उनको टिकट शो करते हैं तो वो आपकी टिकट चेक करते हैं थ्रू द नेम से चेक करते हैं। कैसे? उनके पास जो चार्ट होता है उसके अंदर आपका नाम, आपकी एज, सब कुछ लिखा हुआ होता है, वो उससे चेक करते हैं। आपके पास एक ID प्रूफ मांगते हैं और फिर वो ID प्रूफ से चेक करते हैं। सॉरी फॉर दिस। तो ये पैसेंजर डिटेल्स हो गई हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं दिस। अब यहाँ पर है दिस इज रिजर्वेशन चार्जेस, रिजर्वेशन फी, आरक्षण शुल्क, आ फॉर आरक्षण एंड शू फॉर शुल्क, रिजर्वेशन फी। तो रिजर्वेशन फी यहाँ पर 75 रुपीज है। नाउ व्हाट इज मीनिंग रिजर्वेशन चार्जेस? रिजर्वेशन चार्जेस मतलब दिस इज योर रिजर्वेशन टिकट, मतलब आपने जब टिकट बुक करा दी है तो आपको एक पर्टिकुलर सीट नंबर अलॉट कर दिया है कि ये आपकी सीट है। उसके बाद कोई और टिकट बुक कराने जाएंगे तो किसी और पैसेंजर को आपकी सीट नहीं दी जाएगी। दैट मीन्स योर सीट इज रिजर्व्ड, आपकी सीट को रिजर्व कर दिया है वहां पर, तो किसी और पैसेंजर को अब आपकी सीट नहीं दी जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल टाइप ऑफ चार्जेस आपसे लेते हैं जिसे कहते हैं रिजर्वेशन फी और रिजर्वेशन चार्जेस। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन चार्जेस है, आपको पहले से जो एक सीट अलॉट कर दी है उसके लिए रिजर्वेशन चार्जेस है 75 रुपीज। जैसे कि सारी ट्रेन में एक जनरल क्लास भी होता है, जनरल कोच भी होता है। जनरल कोच में क्या है, अगर आपने रिजर्व टिकट, आपकी रिजर्वेशन की नहीं है, आपको रिजर्व सीट नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आपके लिए जाना कंपलसरी है, तो आप क्या करेंगे, आप जनरल की टिकट लेंगे। तो जनरल कोच की टिकट में क्या होता है, ये रिजर्वेशन चार्जेस नहीं लगता। ये जो चार्ज एक्स्ट्रा गवर्नमेंट लेती है ये रिजर्वेशन चार्जेस नहीं लगते, क्योंकि उसमें आपको कोई स्पेशल सीट नहीं दी गई है। आप ट्रेन में जाएंगे, आपको अगर सीट मिलती है तो आप बैठेंगे, सीट नहीं मिलती है तो कोई और पैसेंजर उसके ऊपर बैठा हुआ है, आप उसको नहीं कह सकते दिस इज माई सीट। बट हियर if you have paid the reservation charges, you can tell the other people that this is your seat only from this ticket। आप अपनी टिकट दिखाकर उनको शो कर सकते हैं कि ये आपकी सीट है, वो आपकी सीट पे नहीं बैठ सकते because you have paid for this।
लेकिन अगर आपने रिजर्वेशन चार्जेस नहीं दिए हैं, आप जनरल कोच में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई और सीट पे बैठा हुआ है, तो आप उनको नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पे बैठूंगा. So reservation charges here is 75 rupees and total charge for this ticket is कितने हैं total charges 2578 rupees. total fare of this ticket, fare मतलब चार्ज या टिकट के पैसे जो भी हम कह सकते हैं, that is 2578 rupees. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ नेम ऑफ द ट्रेन. नेम ऑफ द ट्रेन, आप कौन सी ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हो. हमने यहाँ तो देखा ट्रेन नंबर हो गया, ठीक है, ट्रेन नंबर ये हो गया. नाउ नेम ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का नाम क्या है. सो द नेम ऑफ द ट्रेन इज रिटन हियर, दैट इज अवध एक्सप्रेस. क्या नाम है ट्रेन का, अवध एक्सप्रेस. नेक्स्ट बोर्डिंग पॉइंट. बोर्डिंग पॉइंट जैसे कि मैंने ओमानास जर्नी में आपको बताया था कि बोर्डिंग पॉइंट का मतलब होता है जहां से आप ट्रेन में चढ़ने वाले हो. जरूरी नहीं है कि ट्रेन गांधीधाम से स्टार्ट हो रही है तो आप गांधीधाम से ही ट्रेन में बैठ रहे हो. ट्रेन गांधीधाम से स्टार्ट हो रही है, आप आगे भचाऊ से भी बैठ सकते हैं, आप आगे अहमदाबाद से भी बैठ सकते हैं. मीन्स ट्रेन का रूट जहां से भी है, नेक्स्ट स्टेशन से आप बैठ सकते हैं. अगर हम ओमाना की बात करें तो ओमाना की जो ट्रेन थी, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेन वॉज गांधीधाम. गांधीधाम से शुरू हो रही थी, बट ओमाना एंड हर फैमिली बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम अहमदाबाद स्टेशन. तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से स्टार्ट हो रही है और बांद्रा टर्मिनस से ही इनका बोर्डिंग पॉइंट है. नेक्स्ट इज टिकट नंबर. ये जो डिजिट्स यहाँ पर दिए हैं, दैट शोज योर टिकट नंबर. टिकट नंबर आपका कौन सा है. कीप इन माइंड दैट ट्रेन नंबर एंड टिकट नंबर दे बोथ आर डिफरेंट. दोनों डिफरेंट है. ट्रेन नंबर अलग है, टिकट नंबर अलग है. टाइम ऑफ बोर्डिंग द ट्रेन. अब कितने बजे आपको ट्रेन मिलेगी ये भी तो पता होना चाहिए ना. पता चले ट्रेन आपकी शाम की 5 बजे है और आपको पता नहीं है 5 बजे की ट्रेन है, आप 6 बजे स्टेशन पे जा रहे हैं और ट्रेन आपने मिस कर दी. तो पता तो होना चाहिए ना कितने बजे की ट्रेन है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम हियर. ये देखिए आपके ट्रेन का जो टाइम है वो यहाँ पर दिया है, दैट इज 14 hours and 36 minutes. 14 hours, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 14 hours. 14 मतलब कि जैसे 12 बजे हैं दोपहर के, दोपहर की बात कर रही हूँ मैं, दोपहर में 12 बजे, उसके बाद 1 बजते हैं तो उसे कहते हैं 13, और 2 बजते हैं तो उसे कहते हैं 14. तो 14 मतलब दोपहर के 2 बजे एंड एट 36 मिनट. तो इतने बजे आपकी ट्रेन जो है वो चलने वाली है. तो उसके पहले ही आपको रेलवे स्टेशन पहुंच जाना है. यस, तो जो हम अदर टाइप ऑफ टिकट की बात कर रहे थे, दैट इज ई टिकट. इसकी बात कर रहे थे हम कि आपने, हो सकता है घर में मैंने जो आपको पहले वाली टिकट दिखाई, आपने वो वाली टिकट देखी हो अपने घर में. अगर वो वाली टिकट आपने नहीं देखी है तो हो सकता है आपने इस वाली टिकट देखी हो अपने घर में. दैट टिकट विच आई हैव शोन यू बिफोर, दैट इज आई टिकट. उसको कहते हैं आई टिकट एंड दिस इज ई टिकट. तो आई टिकट और ई टिकट के बीच में डिफरेंस मैं आपको बाद में बताती हूँ. पहले हम ये देखते हैं कि ई टिकट को भी ऐसे ही पढ़ना हमें आना चाहिए जैसे हम आई टिकट को पढ़ रहे हैं. तो इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन दी होती है, बस आपको रीड करना आना चाहिए. जैसे यहाँ पर ट्रेन नंबर एंड नेम है, तो ट्रेन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 2925 एंड द नेम ऑफ द ट्रेन इज पश्चिम एक्सप्रेस. नाउ डेट ऑफ जर्नी इज गिवन हियर 30 May 2008. PNR नंबर इज ऑल्सो गिवन हियर. डेट ऑफ बोर्डिंग, कितने बजे आपको, सॉरी, डेट ऑफ बोर्डिंग मीन्स कौन सी डेट को आपको ट्रेन में जाना है, दैट इज ऑल्सो गिवन हियर. नाउ फ्रॉम न्यू दिल्ली टू सोनीपत. न्यू दिल्ली से इनको जाना है सोनीपत, जिनके भी ये टिकट है. हाउ मैनी पैसेंजर्स आर देयर, दैट इज गिवन हियर. आर के तिवारी, उनकी एज यहाँ पर दी हुई है, वो गर्ल है या बॉय है, मेल है कि फीमेल है, वो यहाँ पर दिया हुआ है. व्हाट इज हिज कोच नंबर. अब यहाँ पे देखिए हिज कोच नंबर इज S6. तो S6 मतलब कौन सा क्लास हुआ, कौन से क्लास में ये ट्रैवल कर रहे हैं, दैट मीन्स स्लीपर क्लास में ये ट्रैवल कर रहे हैं. अब उनकी सीट नंबर यहाँ पर दिया है 41 नंबर. एंड स्टेटस, स्टेटस में क्या है, बुक्ड. मीन्स आपकी जो टिकट है 41 नंबर की जो सीट है दैट इज कन्फर्म्ड हियर. अगर यहाँ पे कंफर्म नहीं होती तो यहाँ पे दिखाया जाता वेटिंग.
स्टेटस में क्या दिखाया जाता, वेटिंग। मतलब अगर कोई और आपके आगे जो पैसेंजर ने टिकट ऑलरेडी बुक करा ली है, अगर वे पैसेंजर टिकट को कैंसिल कराते हैं तो आपका नंबर आगे आएगा और आपको टिकट कंफर्म मिलेगी। यहाँ पर बुकड है मीन्स उनकी टिकट कंफर्म है, ठीक है। और बोर्डिंग पॉइंट इनका दिया हुआ है कि कहाँ से ये ट्रेन में चढ़ने वाले हैं, तो न्यू दिल्ली से ये ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। उनका रिजर्वेशन कहाँ तक है, सोनीपत है उनका रिजर्वेशन, ये एक हो गए। अब यहाँ पे कोटा की बात करें तो जैसे जनरल कोटा में आप नॉर्मली 3 महीने पहले या 2 महीने पहले टिकट बुक करते हैं, तो जैसे जनरल कोटा होता है, देन एक तत्काल कोटा होता है। आपको इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो आप 2 दिन पहले अपनी ट्रेन को बुक कर सकते हैं टिकट, तो उससे तत्काल कोटा कहते हैं। यहाँ पर एक लेडीज़ का कोटा अलग से होता है, जो लेडीज़ होती है उनको गवर्नमेंट अलग से कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व होती है, तो उनके कोटा में भी टिकट बुक होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग कोटा यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ ओनली 1 पर्सन इज ट्रैवलिंग, जो एडल्ट मतलब जो बड़े लोग हैं तो एक ही है, एंड चाइल्ड इज 0, कोई बच्चा इस पैसेंजर के साथ में ट्रैवल नहीं कर रहा है। शेड्यूल डिपार्चर मतलब कितने बजे ट्रेन चलने वाली है, तो ट्रेन यहाँ पर चलने वाली है 11 बजे और 15 मिनट पे ट्रेन आपकी चलने वाली है, ठीक है। एंड टोटल फेयर कितना पैसा लगा ये टिकट बुक करने में, 141 रुपीज़। So in this way we can read and understand this type of ticket also। बस ध्यान से हमें देखना है और हमें समझना है कि ये सारे जो टर्म्स है उसका मीनिंग क्या है, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ई टिकट एंड आई टिकट। आई टिकट जो होती है ये आपको खरीदनी है कहाँ जाकर, रेलवे स्टेशन जाकर टिकट विंडो से पैसे देकर आपको ये टिकट खरीदनी है, जिसे कहते हैं विंडो टिकट। क्या कहते हैं, विंडो टिकट। मतलब क्या होता है इसका, आपने रेलवे स्टेशन पर जाकर ये टिकट खरीदी है। ये टिकट होती है ई टिकट, इसको आप अपने घर पे बैठे बैठे ही आप ई टिकट गवर्नमेंट की IRCTC की जो वेबसाइट है वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो आपके फादर अगर इस टाइप की टिकट बुक करते हैं तो आपको पता होगा कि घर पे बैठे हम थ्रू इंटरनेट इस टाइप की टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपके घर पे इंटरनेट नहीं है, आपके फादर नेट बैंकिंग या जो डेबिट कार्ड होता है जिससे हम पैसे पे कर सकते हैं, अगर वो यूज़ नहीं करते हैं तो आप रेलवे स्टेशन जाके कैश पेमेंट करके आप इस टाइप की टिकट खरीद सकते हैं। तो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई टिकट तो ये विंडो से खरीदी जाती है फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ई टिकट होती है हम अपने घर से बुक कर सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है, अगर हमें टिकट कैंसिल करानी पड़ जाए तो ये जो ई टिकट है इसको हम कैंसिल करा सकते हैं घर पे बैठे बैठे। हमने जिस अकाउंट से पैसे पेमेंट किया है तो उस अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो आई टिकट है इसको हम घर पे बैठे बैठे कैंसिल नहीं कर सकते, इसको कैंसिल कराने के लिए भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमने टिकट बुक की थी, दैट मीन्स at the railway station। Next, the most important topic of this chapter is नागरकोइल एक्सप्रेस। अब नागरकोइल एक्सप्रेस आपको शायद पता होगा, ये वो एक्सप्रेस का नाम है, ये वो ट्रेन का नाम है बाय थ्रू ओमाना वेंट टू केरला फ्रॉम अहमदाबाद, बट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेन वॉज गांधीधाम। गांधीधाम से ये ट्रेन चलती है और कहाँ तक जाती है, केरला तक। तो द ट्रेन नंबर ऑफ दिस ट्रेन इज 6335 एंड द नेम ऑफ द ट्रेन इज नागरकोइल एक्सप्रेस एंड दिस इज द शेड्यूल ऑफ द नागरकोइल एक्सप्रेस। मतलब कि वो कितने स्टेशन बीच में रुकेगी, कहाँ कहाँ रुकेगी, कौन सा स्टेशन कितने बजे आएगा, उस स्टेशन पे ये ट्रेन कितने बजे तक रुकेगी या कितना टाइम रुकेगी, कितना किलोमीटर कवर करेगी, ये सब कुछ हमें इस शेड्यूल के थ्रू पता चलता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का रूट क्या है ये हम यहाँ से जान सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट नंबर इज गांधीधाम। गांधीधाम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेन, तो वहाँ पर तो ट्रेन पहले से ही होगी, लेकिन ट्रेन वहाँ से चलेगी, कितने बजे चलेगी, 5:15 मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 बजे सुबह में, 5 बजे और 15 मिनट पे ये ट्रेन चलेगी फ्रॉम गांधीधाम। गांधीधाम के बाद इस ट्रेन का
नेक्स्ट स्टेशन डायरेक्टली है अहमदाबाद। गांधीधाम और अहमदाबाद के बीच में कोई स्टेशन नहीं है, मीन्स 300 किलोमीटर तक ट्रेन नहीं रुकेगी। गांधीधाम और अहमदाबाद के बीच में 300 किलोमीटर्स का डिफरेंस है और डिस्टेंस है, सॉरी, गांधीधाम और अहमदाबाद के बीच में 300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और 300 किलोमीटर तक ट्रेन कहीं पे नहीं रुकेगी और ट्रेन सीधा जाके रुकेगी अहमदाबाद को एट 11:30 AM। 11 बजे और 30 मिनट पे, मतलब 11:30 बजे ट्रेन अहमदाबाद पे जाके रुकेगी। अब यहाँ पर ट्रेन का टाइम डिपार्चर मतलब अब ट्रेन चलेगी, यहाँ पहुँचेगी, मतलब ट्रेन वहाँ पर आ जाएगी इस स्टेशन पे और यहाँ से निकल जाएगी। आ जाएगी 11:30 को और निकलेगी 11:50 को। दैट मीन्स 30 से 40 एंड 50, 20 मिनट्स का हॉल्ट है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ट्रेन 20 मिनट्स रुकेगी और कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी फ्रॉम गांधीधाम टू अहमदाबाद, दैट इज 301। उसके बाद में ट्रेन जाएगी वडोदरा जो स्टेशन है। वडोदरा पे ट्रेन पहुंचेगी 14 आवर्स एंड 3 मिनट्स। तो पहले ही मैंने आपको बताया 14 आवर्स मीन्स दोपहर के 2 बजे, 2:03 पे ट्रेन पहुंचेगी वडोदरा। वडोदरा पे ट्रेन रुकेगी 14 आवर्स एंड 10 मिनट्स तक, मतलब कि 7 मिनट ट्रेन रुकेगी और 7 मिनट के बाद ट्रेन चलना शुरू करेगी। अभी देखो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन गांधीधाम एंड वडोदरा। तो गांधीधाम और वडोदरा के बीच में कितना डिस्टेंस है, 401 किलोमीटर। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर। तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए। इसमें देख के अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है, सब्ट्रैक्शन करना आता है, तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि वडोदरा और अहमदाबाद के बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर। आप 401 माइनस 301 करेंगे तो 100, दैट मीन्स 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और अगर हम गांधीधाम और वडोदरा की बात करें तो 401 किलोमीटर का डिफरेंस है, सॉरी 401 किलोमीटर का डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेशन इज सूरत वलसाड। नाउ वलसाड इज द लास्ट स्टेशन ऑफ गुजरात। गुजरात का लास्ट स्टेशन जो है वो वलसाड का आ जाएगा। वलसाड के बाद में ट्रेन जाएगी भिवांडी रोड। अभी देखो रात के 21 और 10, आप मुझे बताना कि 21:10 मतलब कितना टाइम होता है। तो इतने बजे ट्रेन भिवांडी रोड पहुंचेगी। ये जो स्टेशन है दैट इज इन महाराष्ट्र। उसके बाद हमने देखा था कि ओमाना जब सुबह में उठ जाती है तो कौन सा स्टेशन आता है, डायरेक्टली मडगांव। वलसाड पे वो जाग रही है, उसके बाद वो सो जाती है और मॉर्निंग में जब उठती है तो सीधा मडगांव आ जाता है। मीन्स भिवांडी रोड नाम का जो स्टेशन है वो मिस कर जाती है ओमाना। तो मडगांव वो मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं। और मैंने आपको बताया था मडगांव कौन से स्टेट में है, तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि मडगांव कौन से स्टेट में है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, द मडगांव इज इन गोवा। गोवा के स्टेट में है तो मडगांव आ जाता है। उसके बाद उडुपी आ जाता है, देन कोझिकोड। आपको याद होगा कि ओमाना के साथ में जो अदर फैमिली ट्रैवल कर रही थी, सुनील एंड एन जो बच्चों का नाम था, उनका ये स्टेशन था कोझिकोड। तो कोझिकोड उनको उतर जाना था। उसके बाद में द नेम ऑफ द स्टेशन त्रिचूर एंड द नेक्स्ट स्टेशन एर्नाकुलम टाउन एंड नेक्स्ट स्टेशन इज कोटायम। ओमाना को आपको अगर याद होगा तो ओमाना को इस स्टेशन पे उतरना था कोटायम। रात के इतने बज गए थे, 23:50, 23 मतलब 11 और 50, रात के 11 बजे और 50 मिनट हो गई थी और ट्रेन वहां पर सिर्फ 5 मिनट रुकने वाली थी। और टोटल अगर हम कहें कि ओमाना ने टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल किया थ्रू द ट्रेन, थ्रू द ट्रेन ओमाना ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 2418 किलोमीटर टोटल है। उसमें से 301 किलोमीटर ट्रैवल नहीं किया था स्टार्टिंग में, बिकॉज द बोर्डिंग पॉइंट ऑफ ओमाना वॉज अहमदाबाद नॉट गांधीधाम। सो ट्रेन हैज ऑलरेडी ट्रैवल 30 किलोमीटर बट नॉट ओमाना। तो आप मुझे बताएंगे कि ओमाना ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे कि ओमाना ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया था। ऑल दिस क्वेश्चंस आई विल आस्क यू इन द क्लास। देन अब ओमाना और उसकी फैमिली तो कोटायम में उतर गए हैं। ट्रेन को अभी भी 2
स्टेशन ट्रैवल करने थे, दैट इज त्रिवेंद्रम सेंट्रल एंड नागरकोइल। नागरकोइल, जैसे कि ट्रेन का नाम है नागरकोइल एक्सप्रेस, तो नागरकोइल इज द लास्ट स्टॉप। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ समझाना है, जैसे डे 1 और डे 2, ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो पहला दिन था, मतलब पहला ही दिन जब था तो ट्रेन ने कितने स्टेशन कवर किए, गांधीधाम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड एंड भिवांडी रोड, इतने स्टेशन ट्रेन ने पहले दिन कवर किए। उसके बाद रात के 12 बज गए और फिर क्या हुआ, डे चेंज हो गया, तो सेकेंड डे हो गया। तो सेकेंड डे ट्रेन ने कवर किया मडगांव, उडीपी, कोझिकोडे, त्रिचूर, एर्नाकुलम टाउन एंड कोटायाम। कोटायाम के बाद में यहाँ देखो 23:50 को ट्रेन रुकी, 23:55 को ट्रेन यहाँ पे चल गई, उसके बाद 24 बज गए, मतलब कि दूसरा दिन हो गया, 24 आवर्स कंप्लीट। अभी तीसरा दिन आ गया, 2 दिन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए ट्रेन को कोटायाम तक पहुँचते पहुँचते। तो कोटायाम के बाद में ट्रेन ने स्टार्ट किया त्रिवेंद्रम सेंट्रल एंड नागरकोइल। तो अगर ओमाना को कोटायाम नहीं जाना होता और ओमाना को नागरकोइल जाना होता तो ओमाना को कितने दिन लगते, 3 दिन लग जाते ट्रेन में। लेकिन ओमाना को कोटायाम उतर जाना था तो ओमाना ने ट्रेन में कितने दिन ट्रैवल किया, 2 दिन। Now here we end our video. I hope you understood well the train, the ticket of the train, the schedule of the train. आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। I hope you have enjoyed the video. Stay home, stay healthy. Bye.